زائد ممالک میں 100 سے زائد پاکستانی خواتین ڈاکٹرز ایک ٹیکنالوجی سے چلنے والی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو طبی امداد اور ان کی دیکھ بھال فراہم کر رہی ہیں. اور ای ڈاکٹر منصوبے کی ٹیکنالوجی پارٹنر اور ایجوکاسٹ کے بانی عبداللہ بٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب تک مختلف ممالک میں موجود سینکڑوں پاکستانی خواتین ڈاکٹرز کو طب کے پیشے میں واپس لے کر آئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ بڑی اچھا قدم ہے جو خاندانی یا سماجی مسائل کے باعث پیشے کو چھوڑ گئی تھی ڈاکٹرز. تاہم گزشتہ 2 برس کے دوران انہوں نے پریکٹس دوبارہ شروع کر دی ہے. ان ڈاکٹرز کو 6 ماہ کا آن لائن سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے. اس فیملی سے میڈیسن سرٹیفکیٹ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مریضوں کے علاج کرنے کے اہل ہو جاتی ہیں. اور ویسے بہت سارے فیملیز جو ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ڈاکٹر تو بن جاتی ہیں, سوشل ایشوز ہوتے ہیں, شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی پریکٹس نہیں کر پا رہی ہوتی, گھروں میں چلی جاتی ہیں, کچھ ملک سے دوسرے ملک میں شادی ہو جاتی ہے تو ادھر چلی جاتی ہیں اور پریکٹس نہیں کر پا رہی ہوتی, کچھ اسپیشلسٹ باہر موجود ہوتے ہیں لیکن اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اب ٹیکنالوجی نے یہ فائدہ تو اشارہ دیا ہے نا کہ آپ کنسلٹنٹ جو ہے اس سے بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں اپنا. اور کووڈ کے اندر بھی ہم نے ٹیلی میڈیسن کا کردار بہت زیادہ دیکھا تھا. تو ہم نا یہ بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. عبداللہ بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہ صورتحال ہے, کیسے یہ خیال سامنے آیا, کتنا اچھا رسپانس ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیے گا, بہت اچھا انیشیٹو ہے, کتنا اس کو سراہا بھی جا رہا ہے, یہ خیال کیسے آیا تھا, اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم. یہ بنیادی طور پر ہمارا تعلق ایجوکاسٹ سے ہے اور ایجوکاسٹ پارٹنر ہے ود ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. ای ڈاکٹر پروجیکٹ ایک جوائنٹ وینچر ہے جس کے تحت ہم نے 2 سال پہلے یہ شروع کیا تھا. مقصد صرف یہی تھا, جیسا بھی آپ نے عرض کیا, کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ڈاکٹرز اور یا پھر ایسی پریکٹسنگ ڈاکٹرز جو اپنی بنیادی جو سکلز ہیں اس کو دوبارہ تیز کرنا چاہتی ہیں یا اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا. اس سلسلے میں 25 سے زیادہ پروفیسرز اور 40 سے زیادہ اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی ٹیم ہے ہماری جو ان ڈاکٹرز کی تربیت کرتی ہے, نہ صرف پاکستان سے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے بلکہ امپیریل کالج لنڈن سے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اور سوسائٹی آف آبسٹیٹک اینڈ گائنی سے. ابھی ہمارا خیال یہ ہوا جب پیلسٹائن کا ایشو آیا تو چونکہ ہم یمن میں آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں, یمن میں ہم 3 مدر چائلڈ کلینک سینٹرز ہماری ڈاکٹرز رن کر رہی ہیں, تو ہم نے پیلسٹائن میں موجود آرگنائزیشن سے بات کی اور ہم نے اس کے تحت اب جو کرنٹلی سٹیٹس ہے کہ ہم رام اللہ میں, ویسٹ بینک میں اور غازہ میں ہم اس وقت فوری طور پر جو ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہماری ایسی ڈاکٹرز جو عربک سپیکنگ ڈاکٹرز ہیں جو جارڈن اور سوڈان میں ہیں, وہ وہاں جارڈن اور سوڈان سے کنیکٹ ہو کے کراچی کے تھرو اور رام اللہ میں اور غازہ میں اور ویسٹ بینک کے اندر وہاں پہ یہ ہیلپ پرووائڈ کر رہی ہیں. وہاں پہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جو جس کے پاس کوئی 20,000 سے اوپر خواتین رجسٹرڈ ہیں, ان کو ہم یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا عبداللہ بٹ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ڈاکٹر عدیہ احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عدیہ احمد, ویلکم ٹو شو. آپ بتائیے گا ٹیلی میڈیسن کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جی ٹیلی میڈیسن سب کو لاسٹ ایئر سے کووڈ جب سے آیا ہے تو جو ہے اس کا بوم آیا ہے اور سب کو پتہ لگ گیا اٹس دا نیڈ آف این آور. تو ایجوکاسٹ کے پلیٹ فارم سے ڈاؤ یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہو کے میں نے اراؤنڈ آئی ایم ایفیلیٹڈ ود اٹ سنس 2.5 to 3 years. تو میں نے یہ کورس کیا اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اپرچونیٹیز ملتی گئیں اور پھر ایک کارواں بنتا گیا. اسپیشلی کووڈ کے بعد سے بہت بوم ملا. تو ہم کورس کی وجہ سے یہ ہوا ہماری ساری پریویس نالج ریفریش ہو گئی, ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر جو کانفیڈنس تھا وہ آیا, اور پھر ہمیں جب پیشنٹس ملنا شروع ہوئے تھرو ٹیلی ہیلتھ تو وہ ایک ظاہر ہے ایک جو پیشنٹ انٹریکشن کے بعد جو کانفیڈنس آتا ہے تو وہ ایکسپیرینس ہوتا گیا اور وہ پھر ہمارا اچھا رہا. اس کے بعد پھر یمن ہے اور پھر فلسطین کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ اپرچونٹی ملی کہ ہم سرو کر سکیں. تو بہت اچھا رہا یہ, اور ہم سب خواتین جو گھر بیٹھ گئی تھی کسی نہ کسی وجہ سے اپنی چوائس سے یا جو بھی تھا, تو ہم لوگوں کو یہ ایز اے ریفریشر کورس اٹ واز لائک اے بریتھ آف فریش ایئر. تو بہت ہم لوگوں کو سپورٹ ملی ایجوکاسٹ کی طرف سے, اور وقتاً فوقتاً یہ ہمیں کورسز بھی کرواتے رہتے ہیں, چاہے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہو یا میڈریڈ اکیڈمی ہے UK کی, ہم لوگ ریفریشر کورسز کرتے رہتے ہیں ریگارڈنگ ڈفرینٹ اسپیشیلٹیز, اور ہمارا جو ہے وہ پھر ہم اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں ود دا کرنٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے کتنے عرصے کا بریک لیا جس کے بعد آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا, یہاں سے آپ پھر جو آپ کا بچپن کا شوق تھا اس کو پورا کر رہی ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, ان کی مدد کر رہی ہیں. آپ یہ بھی بتائیے گا کہ
جو खलिश होती होगी जब आप इस पेशे से, इस मुकद्दस पेशे से दूर हो गई थी, वो खलिश अब पूरी होती हुई आपको नजर आ रही है कि मैं कर पा रही हूँ जो मैं चाहती थी? जी बिल्कुल, आई थिंक वो थॉरली जो है पूरी हुई है। लास्ट मैं जो हूँ, मैंने 5 साल का ब्रेक लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने पहले ये कोर्स किया। मैं वैसे ऑनलाइन ये होता था कि अप टू डेट रहते थे, पढ़ते रहते थे, लेकिन एक जाहिर है वो पेशेंट वाला टच मिसिंग था। तो 5.5 साल का गैप लिया। उसके बाद मैंने ये कोर्स किया, फिर मैंने डिफरेंट जो है क्लिनिक्स में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो ऑनलाइन जॉब है वो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और कोविड की वजह से लास्ट ईयर जितना हमें एक्सपीरियंस प्लस हमें लोगों से रिगार्ड और दुआएं मिली हैं, तो वो जो एक मिसिंग पार्ट था ना, वो इट हैज बीन फुलफिल्ड थॉरली। और जो है वो बहुत एक वापस से वही फीलिंग आती है जो एक जज्बे से हमने पढ़ा था, तो वो था कि वो जज्बा अभी तक कायम है। ठीक है डॉक्टर अदिया, हमारे साथ ही मौजूद रहे आप। हम लोग डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, बानी भी हैं इस इनिशिएटिव के। उनसे जानते हैं कि फलस्तीन में किस तरीके से आप काम कर रही है आपकी ये टीम, और जैसे हम कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं, क्या उसका सामना तो नहीं करना पड़ा, और कितने ममालिक से डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे? पहले मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि हमारे पास पर 14 मुल्क, हमारे जो टोटल डॉक्टर्स हैं वो 1000 हैं, जो 27 मुल्कों में हैं, पाकिस्तान को मिला के। इसमें से जब हमने वॉलंटियर्स मांगे थे लास्ट टाइम यमन के लिए, तो हमारे पास कोई 12 मुल्कों से वॉलंटियर्स आए थे जो काम कर रहे हैं यमन के अंदर। और अब पैलेस्टाइन के लिए कोई 14 मुल्कों से हमारे पास ये वॉलंटियर डॉक्टर, हमारी अपनी डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं। ये मैं क्लियर कर दूं कि अभी जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमारी तमाम डॉक्टर्स ने, ये चूंकि अंग्रेजी बोलने वाली डॉक्टर्स थी, अरबिक नहीं बोल सकती थी, तो पहले मरहले पे हमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो लैंग्वेज का था। तो लैंग्वेज की वजह से हमने लास्ट वीक हमने जॉर्डन और सूडान में जो हमारे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स डॉक्टर्स के साथ थे, अरबिक यानी लोकल डॉक्टर्स के साथ, उनको हमने अपने पाकिस्तान बेस्ड ई डॉक्टर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया है। और हम रमल्ला, जैसा मैंने बताया पहले कि हम रमल्ला में, वेस्ट बैंक में और गाजा में हम अपनी सर्विसेज वहां दे रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स हमारी जो है वो अभी स्टैंड बाय पे हैं। जैसे ही लोड बढ़ेगा, इंशाल्लाह, उम्मीद अब तो लोड नहीं बढ़ेगा बिकॉज सीज फायर हो गया है, तो फिर हम इन डॉक्टर्स को की सर्विसेज हासिल करेंगे। अभी फौरी तौर पर हमारी सूडान में और इजिप्ट के अंदर और जॉर्डन के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो काम कर रही हैं इस वक्त। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस प्लेटफॉर्म का कुछ डॉक्टर्स हिस्सा बनना चाहती हैं जो इस वक्त ब्रेक लेके बैठी हुई हैं, चाह रही हैं कि आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इससे वो दोबारा से अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकती हैं, आपसे राब्ता कैसे किया जाए, क्राइटेरिया क्या है आपका? जी, हमारे आप बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.duhs.edu.pk, या फिर ई डॉक्टर की वेबसाइट है www.edoctor.com.net.pk। इन दोनों पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, ऑनलाइन हमारा एक्सेस भी है और हमारी ईमेल भी है, आप कर सकते हैं। और हमारे करंटली कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं और भी कोर्सेज होते रहते हैं, और वील बी डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू हैव देम विद अस। डॉक्टर अदिया, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आपने काफी गैप के बाद दोबारा शुरू किया, कितने पेशेंट्स हैं जो आपसे राय लेते हैं या आपसे एडवाइस मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कोरोना के हवाले से भी, फलस्तीन के हवाले से भी? क्या कुछ पेशेंट्स ने आपसे कांटेक्ट किया? जी, कोरोना के हवाले से तो हमारी एक हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पर हमें अलॉट होते हैं पेशेंट्स, लेकिन उसके अलावा भी फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या उन पेशेंट्स जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं, उनके कोई रिलेटिव्स हैं, सो दे ऑलवेज टर्न बैक टू अस कि आप हम लोगों को प्लीज ट्रीट करें, हम लोगों को ही ट्रीट करें। और इस तरह तो हमारा बहुत अच्छा टर्न आउट है पेशेंट्स का, बहुत अच्छी हमें अप्रिसिएशन मिल रही है। और हमने ये वॉलंटियरली किया है ड्यूरिंग कोविड। हम सब ई डॉक्टर्स ने वॉलंटियरली सर्व किया है टू कोविड पेशेंट्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और अभी तक कर रहे हैं हम। और हमारा बहुत अच्छा टर्न आउट है। हमारी हेल्पलाइन पे ढेरों कॉल्स आती हैं कि जो है ना हमें इस डॉक्टर से कनेक्ट कर दें और उस डॉक्टर से। और फलस्तीन का पे भी करना पड़ता है पेशेंट को? जी, ये वॉलंटियरली है या फिर पेशेंट जो वो पे भी करता है? हमारी कोविड का जी, ये जो कोविड है हमारा, तो ये हमारी वॉलंटरी सर्विस है। ये हम बिल्कुल एज अ वॉलंटियर कर रहे हैं सारी ई डॉक्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सर्विंग द नेशन सिंस पास्ट 1.5 year और सो सिंस द पेंडेमिक। तो ये हम कोई चार्ज नहीं लिया हमने। हमारी ऑर्गेनाइजेशन
जो है मर्ज किया था सिंध गवर्नमेंट के साथ, और हमने कोविड मॉनिटरिंग की थी और वो अभी तक चल रहा है पोर्टल, और ये वॉलंटरी सर्विस सही थी। है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट साहब ये बताइएगा, हम देखते हैं कि जब एक डॉक्टर गैप के बाद वापस आ रहा होता है तो लोगों का शायद उतना एतमाद भी बहाल नहीं हो रहा होता। लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो इतनी देर जो है प्रैक्टिस में नहीं थे। आपने बताया कि आप लोग ई लर्निंग की तरफ भी जा रहे हैं, कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन भी हो रही है, तो वो क्या प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का, किस लेवल की सर्टिफिकेशन है, किस तरह इंश्योर किया जाता है कि ये जी सर्टिफिकेशन पर हमें भरोसा भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखें, जब हमने 2016 में शुरू किया था, इनफैक्ट 2017 में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, तो उस वक्त हमने देखा था कि कई तंजीमें, कई प्राइवेट एनजीओज आकर मार्केट के अंदर ये कह रहे थे कि जी घर में जो बैठी हुई डॉक्टर है वो बस अपना कंप्यूटर खोले और स्काइप लगा ले या और टेलीफोन उठा ले और इलाज करे लोगों का और हम उनको पैसे देंगे। ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे और इससे बहुत गलत एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था। अच्छा। तो फिर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने एग्री किया, जिसके बाद हमने बाकायदा कोर्स डिजाइन किया और इस कोर्स के ऊपर हमने 5 साल में जो लड़कियां, जो डॉक्टर्स हमारी पढ़ती थी, वो पूरे 5 साल का कोर्स हमने 6 महीने में समो दिया। ओके। और इस तरह समोया कि लोग अपने मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर, मुख्तलिफ टाइम जोन्स में बैठकर उस कोर्स को करते थे। और हमारा, मैं यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का और अपने प्रोफेसर्स का, जिन्होंने इंतहाई मेहनत, इंतहाई लगन के साथ हमारी इन डॉक्टर्स को सपोर्ट किया। दिन देखा न रात देखा, इनको सपोर्ट किया। क्योंकि आप देखें, जब आप 27 मुल्कों में बैठे हुए डॉक्टर्स हों, उनको आप हैंडल कर रहे हों, मुख्तलिफ सवालात आते हैं। हमने यहाँ पे इंतहाई जदीद मॉडल जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग में, जिसको हम फ्लिप क्लास कहते हैं, फ्लिप मॉडल हमने इख्तियार किया, जिसके तहत हमारे लेक्चर्स जो हैं पहले डिलीवर हो जाते थे और डॉक्टर्स को टाइम दिया जाता था कि वो अपने टाइम पे पढ़ें और इस पर रिसर्च करें। उसके बाद वो सवालात पूछती थी, फिर हमारे टीचर्स आके तमाम सवालात के जवाब देते थे। ये करने के बाद फिर दूसरा एक खामी या कमी आ रही थी कि डॉक्टर्स चूंकि इंडस्ट्री से दूर थे तो इनको दवाओं का नहीं पता था, हाँ जी। लेटेस्ट मेडिसिन का नहीं पता था, लेटेस्ट फॉर्मुलेशंस का नहीं पता था। फिर डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ मिलकर हमने एक 3 महीने का थेरोपेटिक्स और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का कोर्स शुरू किया, जिसमें एडवांस लेवल के ऊपर हमारे यूएस से डाउ ग्रेजुएट एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका ने भी हमारी टीम ने साथ दिया और हमें बाकायदा तौर पे इनको नई दवाएं, नए रिसर्च, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है और टेलीमेडिसिन के एनवायरनमेंट में प्रिस्क्रिप्शन कैसे दी जाती है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। साथ साथ चूंकि ये खवातीन थी, हमारी डॉक्टर्स थी, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू था कि खवातीन को टेलीफोन पे खवातीन कैसे हैंडल करेंगी, खासतौर पे उनके जो पोशीदा अमराज हैं, खवातीन के अमराज हैं, प्रेगनेंसी के अमराज हैं, मटरनल अमराज हैं। तो फिर हमने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की टीम से राब्ता कायम किया। उन्होंने अपनी एकेडमी, मेडरेट एकेडमी के थ्रू हमारी 3 महीने का एक कोर्स रन किया, जिसके OBG वाइन और टेली हेल्थ कहते हैं। तो हमारी इन खवातीन को ट्रेन किया गया ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी में। तो इस तरह माशाल्लाह हमारे तकरीबन इनको 1 साल लगता है पूरे सारे प्रोसेस के अंदर, जब जाके ये ठीक इस है। तरह होती है। और ये आज इसका नतीजा डॉक्टर दिया ने जैसे बताया। ये हमें बताइएगा प्लीज आप यहाँ पर कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगी वो लेडी डॉक्टर्स जो इस वक्त आना भी चाह रही होती हैं, क्योंकि कोई ऐसी लेडी डॉक्टर नहीं होगी जो अपने पेशे को कंटिन्यू ना करना चाह रही हो। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको इधर आना चाहिए, कैसा प्लेटफॉर्म है, किस तरह वो इसका हिस्सा बन सकती हैं और किस तरह वो जो बचपन का ख्वाब होता है कि मैंने डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करनी है, उसको पूरा कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर जिसका भी ये ख्वाब होता है बचपन का, तो वो पैशन और वो जज्बा तो कायम रहता है। तो चाहे वो थोड़ा सा गैप भी आ जाए, इट नेवर डाइज, इट्स ऑलवेज देयर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें बूस्ट देती हैं, हमें एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड आई वुड से कि जो भी घर किसी भी वजह से गैप आ गया कैरियर में अपनी मेडिसिन का, तो प्लीज ये हमारा एजुकास्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। यू हैव सो मेनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, आपका रिफ्रेश भी होगी सारी नॉलेज और आप अप टू डेट भी रहेंगी विद वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक भी बनेगा आपका। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट इवेंचुअली अगर आप अपना पैशन और अपना हार्ड वर्क दिखाएंगे तो यू विल बी देयर। हमने नहीं सोचा था 3-4 साल पहले कि हम इस जगह पे आ जाएंगे, तो दैट्स बिकॉज के हार्ड वर्क और पैशन तो अंदर होता ही है ना। तो इट्स जस्ट कि उसको एक स्ट्रीमलाइन, एक रोड मिल जाता है। तो ये एजुकास्ट ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो इतना ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सपोर्टिव टू वर्ड्स ऑल ई डॉक्टर्स है। मतलब हमें कभी नहीं, इट्स लाइक आवर फैमिली नाउ, तो हमें कभी हेजिटेशन नहीं होती, कोई हमें प्रॉब्लम हो, कुछ हो, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, टू हेल्प अस एंड टू एनकरेज अस इन एवरी वे पॉसिबल। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेशक ये प्लेटफॉर्म है एजुकास्ट का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदिया।